सर ऐसा एक लकी ड्रॉ देखना है, मुझे आपकी बेसिक सी डिटेल चाहिए। आपका नाम, राहुल आपका फ़ोन नंबर 9716. 168. Thank you. वेलकम सर। अब स्टार्ट होंगी कॉल्स आनी, जहां ये हॉलीडे पैकेजेस वाले अपने अपने पैकेजेस सेल करेंगे। और जब ये हॉलीडे पैकेजेस वाले अपने यहाँ बुलाएंगे अपने अपने पैकेजेस सेल करने के लिए, हम वहाँ सब जाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, अपना बढ़िया टाइम पास करते हैं। पर जब खरीदने की बारी आती है हम कुछ नहीं खरीदते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम प्राइस को, जो वन टाइम फ़ी चार्ज करते हैं एंड जो मेंटेनेंस चार्ज हर साल का एनुअल चार्ज करते हैं, उसको सुन के हम डर जाते हैं और उस पैकेज को यूजुअली अवॉइड करते हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन हॉलीडे पैकेजेस कंपनी के बारे में, उनके कस्टमर्स के बारे में, उनके क्लाइंट्स के बारे में और शेयर होल्डर एज वेल एज बिजनेस मॉडल्स के बारे में। सो इंस्टेड ऑफ जजमेंट्स, मैंने अपने दो दोस्तों को बोला है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपनी अपनी हॉलीडे पैकेजेस कंपनी के बारे में, एंड वी विल सी व्हाट दे हैव टू से। बट in this video I have also given detailed information about Club Mahindra, so don't forget to watch the video till the end क्योंकि आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आने वाली हैं। So friends, we have got Mr. Amit Jindal जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड अमित, बी कंफर्टेबल, आपको हिंदी यूज करनी है हिंदी यूज करो, इंग्लिश यूज करना है इंग्लिश यूज करो, मिक्स यूज करना है, परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, आपने किस कंपनी के साथ अपना मेंबरशिप लिया था और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yeah, I basically have taken from Club Mahindra. Like I'm member for now 15 years. So the time I have taken, so rather my family was not happy. They were saying, "Why your batch is so big?" Because it's a good investment. So rather my father, he was totally not in favor. He was saying, "He invested is a wastage of money," because it was like binding to going to one place and means. If you go to Shimla, so you are going to one because you have Club Mahindra over there. If you are going to Goa, so you are going to limited to those areas. So, but with time, he was so happy. So rather, I upgraded my membership. Rather, he was so happy that he was saying, "Yeah, this is a really good." Wow. Yes, yeah. So means initially he was not in favor, but it was a positive sign for me. Like he was appreciating that this is a good membership. Rather than my brother has taken it after like say 5-10 years or something like that. Okay. Yeah. So आपने जो प्राइसिंग पे किया था when you took it almost 10-15 years back, और आपके जो ब्रदर ने पे किया है, what's the kind of difference in the pricing you found? इसमें it's a huge difference because the time I bought it was like nearly 1.5 that time. I'm talking of 15 years back. Now he has taken I think double the amount, and now they basically in Club Mahindra what they do is they have some seasons, they have some levels of memberships. So now I have upgraded to very higher level. So he has taken like the lower one. So that has costed him double. So अगर आप possible हो, can you throw some light कि वो levels क्या है, because you have taken multiple levels also? yeah, so समझने easy हो जाएगा। Yeah, what they do is Club Mahindra has maybe other members must be doing the same thing. इनके क्या होता है कि जैसे आपके सीजन पे डिपेंड करता है। आपका जैसे पीक सीजन है, जैसे आपका जैसे बच्चों की छुट्टियां होनी है, तो उस वक्त everyone want to go to take a holiday. And now they are very smart people, but they are doing that time they give the highest to like price of the membership. उन दिनों में आपने बुक करवाना है तो आपको वो जो है हाईएस्ट मेंबरशिप देनी पड़ेगी। एंड अदर पीपल कैन आल्सो बुक उन दिनों में, लेकिन उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलेगी 15 दिन पहले। तो उनके लिए एक क्या होता है कि दे डोंट हैव दैट एनफ रूम्स। उससे क्या होता है कि इफ यू हैव लोअर मेंबरशिप यू आर लेस लाइकली टू गेट ए रूम, then purpose is defeated and you cannot plan much in advance. तो उसमें क्या होता है मेंबरशिप इनकी जैसे होता है कि अगर आप लगाओ स्लैब्स, दे हैव 4 स्लैब्स, उनमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मतलब इट्स एक्चुअली ह्यूज डिफरेंस, मतलब 25% इंक्रीज में है, स्लैब्स में डिफरेंस है। तो बट इट्स एडवाइजेबल टू गो टू फॉर हायर वन ओनली, अदरवाइज आप लोअर में लोगे either you like your husband wife and you have like plenty of time, anytime you can travel, then you can take that membership, lower one. If you are
You want to plan with kids, they are going to school, then you cannot plan. It's difficult to plan because that limitations are there. That's right. Okay. बाकी इनमें क्या होता है कि इनमें एनुअल चार्जेस होते हैं. एनुअल चार्जेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज समथिंग लाइक आप दे चार्ज गुड अमाउंट एंड इट इंक्रीजेज 10% एवरी ईयर. मतलब अगर आप एक रूम लगाओ, एवरेज में अगर एक रूम की प्राइस लगाओ तो आपको 6-7,000 पड़ता है besides this membership. If I understand it correctly, आपने जब पे किया था it was 1.5 lakhs. When your brother paid it was around 3 lakhs. Yes. आपके पास हायर कैटेगरी की मेंबरशिप है, उनके पास लोअर कैटेगरी की है. आज की टाइम में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट वैलिडेटेड, बट मेरे हिसाब से 6 से 8 लाख के बीच की प्राइसिंग आती है. हाँ नहीं, ऐसा है कि जो मेरी मेंबरशिप है उसके बाद मैं अपग्रेड काफी करा चुका हूँ. Okay. तो उसमें राइट नो माई दैट मेंबरशिप विच इफ आई कंसीडर तो उन्होंने प्राइस ले चुके हैं. आई हैव पेड अराउंड 7 lakhs still for membership. So you have already paid almost 7 lakhs for your 7 lakh and annually I am paying like 24,000 rupees. अब अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, आपने 7 lakhs दिया है और आपने 24,000 उस पे अभी एनुअल मेंटेनेंस दे रहे हो. आपका ब्रदर जिनके पास लोअर कैटेगरी की है, वो कितना मेंटेनेंस दे रहे हैं? आई थिंक मस्ट बी 10,000, क्योंकि उनकी क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक तो सीजन्स आ जाते हैं, एक आपके रूम्स के साइज आ जाते हैं. सबसे लोएस्ट रूम इसमें 2 लोग रह सके हैं, उससे फिर 3-4, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग कैटेगरीज डिफरेंट हो जाती है. यस, दैट आल्सो हैपेंस. सो बेसिकली दे हैव दैट फंक्शनैलिटी. ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट. और बाकी क्या बेनिफिट्स आपने देखे हैं? बिकॉज यू हैव बीन ऑलमोस्ट 15 years, इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एनी बिजनेस. सो आपके को क्या बेनिफिट्स लगे वहां पर? ओनली बेनिफिट आई वुड से कि जैसे होता है ना कि यू बॉट समथिंग, जैसे आप गाड़ी खरीद लेते हो तो आप उसको चलाओगे. Otherwise, definitely Uber is economical. If we consider you are spending 20 lakhs to buy a car, Uber में आप 20 lakh कभी भी नहीं खर्च करोगे in the same span of time. Only advantage is when you buy it, you are likely to use it. क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 years के बाद आपके days start उनको lapse करना शुरू कर देते हैं. So one is forced to go for travel. So that's the only advantage. Otherwise, I would not have gone to so many cities. Now I have traveled south also. I have covered almost all resorts of Club Mahindra because days are there. You want to use it, then it's easy to plan. Without Club Mahindra, maybe I would not have gone to Kerala, those areas, because it's difficult to plan the hotels. Actually, the reason I have taken membership, what happened? We went to Mussoorie in 2005, and it happened, it was a holiday, it was Holi. We didn't get any hotel over there, and we were frustrated. Then we came about this membership, and like with this membership you can plan in advance. You get a very good, at least it's a decent hotels. You don't have to worry for quality of the hotel, food quality, everything is well managed. So it's like a 4-star property. I won't say 5-star. It's like a 4-star property. So, ये मेरा इनफैक्ट अगला सवाल था आपसे कि आपने इतने साल इनके साथ स्पेंड किया है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ होटल्स व्हिच यू हैव बीन स्टेड? आपने ऑलरेडी बोला जैसे 4-star है. आप कुछ और मतलब में जैसे है कि if I say it's not like all because they have tie-ups with some, like in Himachal they have tie-ups with the local because they cannot have their own, so they are the tie-ups with some local hotels. So definitely it's not all places these are like 5-star or 4-star. Yeah, like in Goa they have 4 properties, right? So all are having different levels. Of course for you are spending the same amount of all the places because your inventory is consumed same way, but quality and those are different at all the places. So it's like something like you are taking airline, so you get a window seat, you may not get, so that way all hotels are having different levels. आपकी बात मैं समझ गया. और एक जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली, इसकी वजह से आप एक्चुअली ट्रैवल कर पा रहे हो, which is very good. Yeah, of course. Right? Now it's easy because you already have spent. Otherwise, what happens if I ask you, you pay now 20,000, you may not like to do it. With this, you are spending money, but it's something you have spent already, and now you are just working with it. So that way, I would say. ठीक है.
लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, हमने बेनिफिट पता कर लिए है, हमने बाकी चीजें भी हमें पता चली है, आप इतने सालों से हैं, इशू क्या क्या फेस किया था, जेन्युइन इश्यूज? Not much, but yes, sometimes it happens. You go, room quality is not given the way you expected, because it's mostly always full. Sometimes you have booking over there, but you are reaching late. तो आपको जो है ना वो पहले जैसे उसमें होता है ना कि 15 rooms are good and 15 are average. You are likely to get the average room. Then you have to place a request. Then they say, okay, sir, tomorrow checkouts are happening. We will provide you better room. So you are at their mercy. So तो ये तो मैं बात समझ सकता हूँ क्योंकि एब्सोल्युटली ओके है, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेज करनी होती है प्रॉपर्टी को अपने एंड पे। right. बुकिंग के टाइम पे कोई इशू कि रूम्स नहीं मिल रहे हैं या कोई सीजन की Yeah, that problem is always there. They start bookings in 4 months in advance. You make the booking just that first 5 days. You will get the bookings. Otherwise, you have to place your booking in waiting, and someone is cancelling. Then you are likely to get. Like if you want to travel hours, like some distance, like you want to travel by airlines, so you have to take the confirm booking, because otherwise what's going to happen, you may not get the booking. आपको then means you have to alternative plan. इस केस में यूजुअली अगर हम जब भी ट्रैवल प्लान करते हैं पहले फ्लाइट्स कंफर्म करते हैं या ट्रेन्स कंफर्म करते हैं, उसके बाद हम होटल पे जाते हैं। यहाँ पे हमें रिवर्स करना है कि पहले हम कंफर्म करें, उसके बाद हम देखेंगे फ्लाइट की क्या कॉस्ट आ रही है, बढ़ गई तो हम झेल लेंगे, नहीं आएगा विल फिगर इट आउट। Yeah, but the mainly thing is you have to plan 4 months in advance always. Otherwise, you cannot plan. You cannot plan that way like 1 month in advance. You say, okay, let's go somewhere, because they don't have much properties and they are increasing memberships every day. Because that's the business they have. So they are increasing memberships. Accordingly, they are not having resorts. So you are less likely to get the time you want to travel because it's always full. So that way. ठीक है, this is fantastic, Amit. I mean, this is it from my side. अगर आप कुछ और additional बताना चाहें, it's totally up to you. Yeah, other things like they have resorts in abroad also, right? So yeah, definitely like they have resorts in Singapore, Dubai, Thailand, and now they have some new resorts also in Europe. So yeah, that way it's advantages over there. So any thoughts of for you to go internationally? अभी तक आप किसी एक international property में इनकी stay करके आए हो? I have traveled in Dubai, I have traveled in Thailand, so and Singapore, my friend, I have planning for him. So of course, I won't say that they are something like 4-star even. They are like 3-star over there. So the properties are not basic bad. properties है बस. Yeah, they are like working properties. But yes, if you are, you are in travel, so when you are paying 10,000 over there, and over here it's like 5,000, 6,000. So you prefer to stay over here, and you already have inventory there. So that way. Okay. Final question which I wanted to ask Amit is कि जब हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, are these properties owned by Club Mahindra or are these associate properties? These are associate properties. अच्छा, these are not owned by Club Mahindra. No. These are not owned by properties like Singapore. I think Ramada. Maybe I'm not remembering. I think Park Venue, some other hotel. So basically, they have like 15-20 rooms. So they are not owning the property. So they have done some association of 20 rooms. So that's the reason that properties are not available most of the time. So you have to see the season when you are likely to get it. So दोस्तों, ये थे हमारे दोस्त अमित। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग टेक अवे इस पूरे डिस्कशन में लगा कि जो लोग डरते हैं ट्रैवल करने से या जो लोग अवॉइड करते हैं ट्रैवल करना, जिनको ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन ऐसे हॉलिडे पैकेजेस को बाय करें एंड रेगुलरली ट्रैवल करते रहें, जैसे कि अमित खुद करते हैं, राइट? अमित ने जैसे खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर वो उनके पास ये पैकेजेस नहीं होते तो शायद वो इतनी सारी डेस्टिनेशंस पिछले 15-18 सालों में जो उन्होंने देखी है शायद कभी भी कवर ना कर पाते। तो बड़ा अच्छा टेक अवे है मुझे लगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे फ्रेंड से जिनका नाम है सौरभ सुराना। So Saurabh, all yours. So just wanted to know कि आप जो अभी तक कितने सालों से आपके पास ये मेंबरशिप है? मैंने मेंबरशिप ली थी 2018 में। Okay, and how has been your experience in the last 3-4 years till now? See, 2018 में लेने के बाद
2 इयर्स तो मैंने हॉलीडे पे गए थे, और फिर बाकी कोविड आ गया था, फिर मैंने अभी बिजनेस भी चेंज किया, तो अब मेरा अभी जाना नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट 2 ईयर से मैंने कोई भी हॉलीडे अवेल नहीं किया। लेकिन इसमें ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी जो हॉलीडे है, आप किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को भी पास ऑन कर सकते हैं। तो एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वो मेरे बिहाफ पे उसने एक हॉलीडे लिया था, तो वो जाके आया था। तो अभी तक मैंने 3 हॉलीडेज हो चुके हैं। चलो, फैंटास्टिक। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्राइस यू पेड व्हेन यू टुक द मेंबरशिप? It was around 2.25 lakh for the membership, for a 30 years membership. 30 इयर्स मेंबरशिप के लिए आपने 2.25 लाख पे किया था। एंड उसमें आपका जो एनुअल मेंटेनेंस आता है वो लगभग कितना आता है? That is separate. That at that time it was 10,000 plus GST. और अभी के टाइम पे कितना आ रहा है ऑलमोस्ट? Abhi now they have reduced the membership. Now they are asking for something 6,000 plus GST. They keep on changing. They keep on changing every year. तो मेंटेनेंस अमाउंट रिड्यूस कर दिया है। Yeah. This time they have reduced. I don't know how come they have reduced. And I got a call because what they do they want to take the 30 years of AMC put together at once. Even they have given that kind of offer also. So in that you have to pay only around 1 lakh or 1,25,000, which is, if you pay like for 10,000 rupees into 30 years, it will come around 3 lakh rupees. But they have also they have an offer also in which if you pay around 1,25,000, they will give you the AMC of the entire 30 years. वाओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो मैंने No, but again there is a catch in it, right? ओके। Yeah, if you deposit 1,25,000 rupees, or maybe if you invest, how much you will get? Minimum 10% return you will get. यस, So 1,25,000 ka 10% how much is? ऑलमोस्ट 11,000, 11,000 or 12,000 rupees, ऑलमोस्ट 11-12,000। यस। which is more than the AMC. हाँ, बट अगर एएमसी इन्फ्लेशन के हिसाब से फिर बढ़ना भी तो चाहिए ना फ्यूचर में। No, because it will not increase. Because you have signed the contract, na? At the time of taking the membership, you have signed the contract, so it won't increase. So okay, so AMC इनका फिक्स रहेगा लाइफ टाइम के लिए। Yeah, and yeah. it would be only 10,000। Yeah. ओके। तो इसके पूरे जो आपने पे किया है और उन्होंने जो बेनिफिट्स दिए थे, व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच यू हैव सीन versus what they have told? Actual benefits. See, benefits like it's the normal thing only. Normal stay was there. See, first of all, they don't have much of their own properties, which they claim. Okay, which they claim. With at the time of giving you the membership, they will show you we have 30 plus locations all over the India spread across. But when you actually go through, they don't have their own properties at all the locations. They tie up with other properties and they call them as associated properties. So and that also keep on changing every year. Like they have tie-ups, then they break the tie-ups, then they again renew, or like some partners don't renew. So that kind of thing happens. So let's say till last year there was a property in Darjeeling, but this year you want to go to Darjeeling, and so then this year they have broken the relationship with that property. So this time you might not get the property in Darjeeling also. So in that case एक जो benefit मुझे इस वजह से दिख रहा है, new locations keeps on adding। और अगर किसी वजह से एक होटल जो पहले अच्छा नहीं आ रहा था या उसके स्टैंडर्ड्स नहीं थे या मेंटेनेंस इशू था, नया आए तो शायद बेहतर आ जाए। No, but इसमें ये भी होता है कि जो टाई प्रॉपर्टी रहते हैं उनको वो ठीक से पे नहीं करते हैं, तो फिर वो भी हट जाते हैं उनसे, ये भी होता है। प्लस जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, हम लोग पुरी गए थे, तो हमें तो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए था, लेकिन पुरी में उनकी जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी थी, मतलब दैट वाज नॉट इवन वर्थ 1,000 रुपीज ऑफ अ प्रॉपर्टी, नॉट इवन, मतलब आई विल से लाइक इट वाज लाइक जस्ट लाइक धर्मशाला टाइप और समथिंग। इतना खराब हालत था उसका, जो एसी था वो पूरा कबाड़ बना हुआ था, टूटा हुआ था, एसी नहीं चल रहा था, रूम का कंडीशन अच्छा नहीं था, लोकेशन अच्छा नहीं था। तो अब पूरी जैसी इतनी अच्छी जगह है, पूरी एक टूरिस्ट प्लेस भी है, और धर्म मतलब रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी इतने जन लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ उनकी ऐसी प्रॉपर्टी है। और जैसे कोलकाता में भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी एक तो इतनी आउटस्कर्ट्स में जाके, इतनी दूर जाके जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो रूम इतने छोटे हैं उसके, मतलब रूम क्या बोले, मतलब
मतलब लेट्स से 80 स्क्वायर फीट का रूम होगा, इससे भी छोटा था रूम। ओह, तो ऐसे मतलब छोटा हो गया। वो तो एकदम ही छोटा हो गया। और फिर अभी जब फैमिली लेके जाते हो, किड्स हैं साथ में, तो फिर आप कैसे एडजस्ट करोगे? यस, तो ऐसे चीज का इश्यूज रहता है। ओके। और पर एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर योर हॉलिडे टू वन ऑफ योर फ्रेंड। यू कैन ट्रांसफर टू योर रिलेटिव, योर फ्रेंड, एनीवन दैट यू कैन डू। ओके, एंड उसके अलावा क्या आपको कुछ और एक्स्ट्रा पे करना होता है जब आप बुकिंग के लिए जाते हो? नहीं, बट लाइक लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था कि जब हम लोग एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज में जा रहे थे, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे ओन प्रॉपर्टी नहीं होती है, और फिर आप जब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के लाते हो, तो सम टाइम दे आस्क फॉर अ मेंटेनेंस फी फॉर द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी आल्सो, बट यू हैव ऑलरेडी पेड द एएमसी and it's not your fault because if that club doesn't have a property in that place, so they are tie up, they are arranging you for another property. You have already paid the AMC and again you have to pay the maintenance fee of the associated property, so it's like a double pay. तो वो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज अक्रॉस द जो उनकी चेन है उसके लिए पे करते हो, या उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए पे? Specific where you are going for that particular, उसके लिए वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं फिर? around 5,000 rupees, 5,000, 6,000. Yeah, yes. Wow, this is very interesting. This is my I mean आपसे बेसिकली रूम रेंट पूरा मांग लिया उन्होंने। हाँ, वही exactly. Wow. And you would have done that calculation for the membership fees, na? Like if I pay 2,25,000 for 30 years, then you just calculate the percentage of return, and in absolute terms, you will get around 12% minimum, let's say. So 30,000 rupees you are getting as a return. 30,000 rupees that plus your EMC of 10,000, 40,000 rupees for a 7-day holiday. That comes to around 6,000 rupees per day rent. Okay. But the room quality is not that standard. So standard of hotels is not great wherever you have stayed till now. It was good in Bandipur. Bandipur they have, that was a very good property. And then Hyderabad they have this thing very good. That means hardly 2 or 3 properties are there which are very good. The rest all are like maybe 2 star or 3 star. अगर हम इनको स्टैंडर्ड स्टार कैटेगराइजेशन में करेंगे, किस स्टार कैटेगरी की प्रॉपर्टीज हैं यूजुअली, तो आप क्या रखेंगे? 2 star to 3 star. 2 star to 3 star. अच्छा, तो मतलब बेसिक बजट वैल्यू होटल टाइप्स हो गया बस। ओके। एंड इजीली बुकिंग्स मिल जाती है या बहुत एडवांस में बुकिंग करनी है? व्हाट्स द प्रोसेस? अच्छा, इसमें भी एक कैच है। जनरली क्या करते हैं, ये जो आपको मेंबरशिप देते हैं ना, ये एक सीजन के वाइज होता है। तो जैसे पीक सीजन का अलग मेंबरशिप होता है, उसका चार्जेस अलग होगा। एक डल सीजन का एक अलग होता है, और एक होता है मीडियोकर, मतलब मिडिल टाइप का। तो अब आप जैसे दिसंबर में लेट से आपको गोवा जाना है, तो यदि आपकी मेंबरशिप पीक वाली नहीं है तो आप उसमें आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि आपने वो मेंबरशिप ली नहीं। अब यदि आपको उसमें जाना ही है तो आपको 2 to 3 डेज की अपनी जो हॉलीडेज है वो आपको फोरगो करनी पड़ेगी। मतलब जो आपकी 7 डे की हॉलीडेज थी वो 4 डेज में हो जाएगी, तब जाके आपको वो प्रॉपर्टी फिर मिलेगी। तो ये एक लॉस है। तो उसका क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया मतलब किस बेसिस पे वो रिड्यूस करते हैं आपकी हॉलिडे को फ्रॉम 7 डेज टू 3 डेज, 4 डेज और 5 डेज? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, बस वो आपका मतलब यदि आपकी मेंबरशिप वो नहीं है, आप जस्ट अपग्रेड कर रहे हो एक लेवल पे, तो वो 2 डेज का वो सिस्टम। सो अच्छा, कितने लेवल्स ऑफ अपग्रेडेशन है? डू यू हैव एनी आइडियाज? इसमें सर मेंबरशिप 3 लेवल्स रहती हैं। तो अब जैसे सबसे बॉटम में रहोगे तो शायद आपको 4 डे तक फॉलो करना पड़ेगा, उसका मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक लेवल का तो है 2 डेज का है, ये इतना श्योर है। कुछ कंपनीज का मेंबरशिप तो 7 लाख 10 लाख रुपीज तक जाता है। वही 10 लाख रुपीज यदि आप इन्वेस्ट कर दो तो आपका साल का 1 लाख रुपए तो कम से कम आएगा। सही बात है। तो 1 लाख रुपए यदि 7 डेज आप किसी भी मतलब अच्छे से अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप रह सकते हैं 7 डेज के लिए, तो आपका 10 लाख रुपीज जो मेंबरशिप है वो तो आपका वैसे ही गया। वही है, यदि आप मेंबरशिप नहीं लेते 10 लाख रुपीज आपका
एक रिटर्न में इन्वेस्टमेंट में पड़ा रहता है अलग से, और उससे जो रिटर्न आ रहा है उसी से आप वही हॉलिडे कर लेते हैं। तो व्हाई टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीस इन दैट मेंबरशिप? सही बात है, बिल्कुल। देन अगेन प्लस अगेन AMC ऑफ अराउंड 14,000 to 15,000 रुपीस, वो एडिशनल चार्ज ऑफ कॉस्ट आ गया। एडिशनल चार्ज ऑफ कॉस्ट आ गया। ओके, सो जस्ट द फाइनल क्वेश्चन सौरभ टू यू, आपका जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, वुड यू रिकमेंड एज अ यूजर टू टेक एनी ऑफ दीस मेंबरशिप्स? अगेन इसमें 2 पॉइंट है, मतलब इसका मतलब स्टेट कट आंसर नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जो लोग को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, कुछ जन होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब पसंद होते हैं, उनको हर साल कहीं ना कहीं जाना ही है, यदि वो लेते हैं तो उनके लिए ठीक है, बट उनको भी काफी अच्छा नेगोशिएशन करना चाहिए। जो भी क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं, उनको पहले मेंबरशिप लेने से पहले आप उनकी प्रॉपर्टीज में ऐसे ही जाके रह के आइए। आप बाहर से ऐसे आप तो मतलब कोई भी मेक माई ट्रिप में या सब में उनकी प्रॉपर्टीज लिस्टेड रहती है, तब उनके थ्रू कोई भी उनकी आप पहले वेबसाइट पे जाके आप पहले चेक कर लीजिए कि ओन प्रॉपर्टी और एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज कितनी है। जो भी ओन प्रॉपर्टीज है आप उसको ऐसी मेक माई ट्रिप या booking.com या किसी के थ्रू भी आप 2-3 प्रॉपर्टीज पे जाके रह के आइए। आप खुद उसको एनालाइज करिए कि कैसी प्रॉपर्टी है, जो वो बोल रहे हैं मेंबरशिप में मतलब वो फैसिलिटीज वहाँ है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सर्विस कैसी है। और फिर आप जब मेंबरशिप लेने जाएं तो अच्छे से नेगोशिएट कर लीजिए, और AMC वाले पॉइंट को क्लियर कट पहले से रिटर्न में ले लीजिए कि मुझे बाद में एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज के लिए भी अलग से मेंटेनेंस देना तो नहीं पड़ेगा। ये चीज पहले से क्लियर कट हो जानी चाहिए। और जो सीजन वाला चीज है कि पीक सीजन के लिए अलग चार्जेस देने पड़ेंगे या उसके लिए अलग देने पड़ेंगे, तो वो चीज अच्छे से कर ले और हार्ड कोर नेगोशिएशन करें, क्योंकि वो आपको मेंबरशिप देंगे ही देंगे। आपको मतलब बहुत सारे ऑफर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये सिर्फ ऑफर आज के लिए है, क्योंकि वो पहले आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं, फिर बोलते हैं ये सिर्फ ऑफर आज के लिए ही है, आपको आज ही करना पड़ेगा तभी मिलेगा, नहीं तो कल से इतना बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपना डिसीजन लेने में पूरा टाइम लगाइए, अच्छे से सोच समझ के ही फिर। समझ गया सौरभ। सो जस्ट वन मोर थिंग इनटू दिस, जब आप उनसे नेगोशिएट करें, सो देयर which means they are open to negotiate and even change their terms and conditions अगर आप पुश करोगे तो। yes wow, this is quite interesting। ये उनको तो AMC ऐसी आ रही है, AMC भी आ रही है, मेंबरशिप भी आ रही है, वो रुपए वो सीधा इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिटर्न जो भी रहता है उसमें, तो उसके इन्वेस्टमेंट से उनका तो काफी कुछ चलते रहता है। ये इनसाइट बड़ी। अब आज सपोज करो आपसे 10 लाख रुपए की कोई मेंबरशिप का लेता है या 7 लाख रुपए लेता है, तो 7 लाख रुपए को तो उनके पास तो और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है ना, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ की रिटर्न का तो कोई मतलब वो ही नहीं है, 50% 100% तक रिटर्न आता रहता है। तो उस इन्वेस्टमेंट से तो उनका सारा मतलब खर्चा है जो भी है वो निकल जाएगा, तो फिर वो क्यों वो करेंगे, तो अच्छा नेगोशिएशन हो सकता है। चलो ठीक है, this was it Saurabh from my side. Thank you so much for your time and we'll definitely put all your जो आपने points दिए काफी insightful थे and we'll try to do a complete analysis around these points. Thank you so much for your time. So दोस्तों अभी हमने सुना सौरभ सुराना को। एक जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, अगर अमित बिल्कुल पॉजिटिव है तो सौरभ मोस्टली थोड़ा सा नेगेटिव है। उन्होंने बात करी कॉस्ट की और उस कॉस्ट के अगेंस्ट एक ROI की, जिसके बारे में एक मैं पूरा डिटेल डिस्कशन अपनी तरफ से भी आपको दूंगा, जिसमें एक पूरी कैलकुलेशन अगले आने वाले पार्ट में दूंगा। सो डोंट मिस दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजन मेकिंग जर्नी के लिए, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अमित ने बोला था कि दैट ही हैज पेड ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज टू महिंद्रा हॉलीडेज। ठीक है, चलो एक किसकी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं जो आजकल आपको काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी, राइट। सो पहले मैं वो कैलकुलेशन बताता हूँ जो लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला है। उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी ने 7 लाख रुपीज़ डाले हैं, राइट, सो 7 लाख उसको अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करते, ऑलमोस्ट 10% पर एनम का एवरेज आपको रिटर्न आता है, तो आपका एवरेज रिटर्न हर साल का बन जाता है 10% पे 70,000 रुपये।
राइट, 70,000 रुपीज़। और उसके बाद आप पे कर रहे हो ऑलमोस्ट 24,000 एज ए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो अब हम इसमें जोड़ेंगे 24,000 एज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इसको मैंने लिख दिया AMC 24,000, तो ये हो गया टोटल 94,000। और फिर उन लोगों का ये कहना है कि अगर हम 94,000 पे कर रहे हैं और एक सिर्फ हमें ऑलमोस्ट 7 डेज की ट्रिप मिल रही है, तो हम मेरा पर नाइट का स्टे की कॉस्ट क्या आ रही है। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। सो दिस ऑलमोस्ट बिकम्स 13,000 रुपीज से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। अगर मैं 13,000 रुपये की एक नाइट का स्टे ले रहा हूँ, आई एम पेइंग मोर देन 5 स्टार्स चार्जेस टू देम, राइट। ये उन लोगों का कहना है। खैर, अगर मैं इस प्राइस को देखता हूँ 13,000 पर नाइट और उससे ज़्यादा अगर मुझे चार्ज पे करना है, ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा दिख रहा है, राइट। पर इसको एक मैं रिवर्स कैलकुलेशन में देखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए यही हम एक FD में डालें और FD हमें आज के टाइम पे दे रहा है लगभग 5%। तो अब हम 5% की कैलकुलेशन पे देखते हैं, क्योंकि सारे लोग तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो अगर 5% हम डाल रहे हैं 7 लाख रुपए का, तो हमें आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़। इसके ऊपर अब हम AMC जोड़ते हैं 24,000। तो हमारी टोटल आ जाती है यहाँ पे 59,000। अब हम 59,000 को डिवाइड करते हैं 7 से। अब हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग 8,500 के आसपास आ रही है पर नाइट, क्योंकि 7 डेज की ट्रिप हमें दे रहे हैं। उसके हिसाब से अगर हम पर नाइट कॉस्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 8,500 आ रही है। नाउ लेट्स सी एंड थिंक, क्या ये 8,500 की कॉस्ट वर्थवाइल है या नहीं है। खैर, इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये हर एक यूज़र की अब मैं एज ए कस्टमर की बात कर रहा हूँ। हर एक कस्टमर का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, स्पेशली विद दिस कैलकुलेशन, क्योंकि सारे लोग, एक चीज़ हम याद रख लें कि सारे लोग शेयर मार्केट में या कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम FD में डालें, विच इज़ ए बेसिक इन्वेस्टमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस, तो मुझे मिल रहे हैं हर साल के 35,000, जिसमें मैं टैक्स को कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। और उसके बाद मैं AMC ले रहा हूँ 24, नाउ इट बिकम्स 59, सो ऑलमोस्ट 8,500 रुपये पर नाइट, राइट। इसमें मुझे बस एक ही बात को कहना है आप लोगों से कि हर एक कस्टमर का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। हम इसमें 3 पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, इन्वेस्टर का, कंपनी का और कस्टमर का। कस्टमर का जब मैं पर्सपेक्टिव देखता हूँ तो मैं उस एंगल से जब देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है। अगर मैं ट्रैवलर नहीं हूँ, राइट, और एक ऐसी मेरे पास डील आ रही है, तो 24,000 रुपीज़ देख के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस केस में मैं फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स या ROI कैलकुलेट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे घूमने का मौका मिल रहा है और 24,000 रुपये देके मैं घूमने जा रहा हूँ, एंड आई एम फाइन विद इट, जो अमित का कहना था। एंड आई टोटली एग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। दूसरा, अब जो सौरभ का कहना था, सौरभ वाज सेइंग कि अगर हम इसको 10% पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड इट इज थिंकिंग फ्रॉम ए इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उस केस में ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड आई एग्री विद दिस पॉइंट। इसलिए मैंने एक छोटा सा अलग एक और पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करी कि हम इंडियंस का पर्सपेक्टिव लें, हम इसको इन्वेस्ट लेट्स से शेयर मार्केट में ना करके सिर्फ FD के हिसाब से कैलकुलेशन दे, तो भी 8,500 रुपये की पर नाइट कॉस्ट है, राइट। अब हमें एज ए यूज़र सिर्फ ये समझना है क्या ये हम पे करना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही बात का कहना है, अगर आपको लगता है आप घूम नहीं पा रहे हैं ज़्यादा और आप घूमना चाहेंगे, देन इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क, राइट। बट अगर आपको लगता है आप खुद से ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकते हैं और आप बहुत घूमते हैं, देन इट मे नॉट बी समथिंग विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, राइट। अब हम बात करेंगे कंपनी की डिटेल्स के बारे में और हम उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कंपनी का अपना पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। हमने कस्टमर पर्सपेक्टिव देख लिया है, हमने इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा समझा है। अब हम देखते हैं कंपनी के लिए क्या फ़ायदा है, कंपनी इस बिजनेस मॉडल से अपने लिए कैसे सक्सेस जनरेट कर सकती है। आम भाषा में जो टर्म यूज़ होती है उसको हम कहते हैं हॉलीडे पैकेजेस, बट एक्चुअल टर्म इसको कह सकते हैं हम वैकेशन ओनरशिप्स, राइट। सो वैकेशन ओनरशिप में 3 प्रोमिनेंट कंपनीज हैं इंडिया में जो पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे बड़ी है महिंद्रा हॉलीडेज़, दूसरे नंबर पे आती है हमारी कंट्री क्लब और तीसरे नंबर पे आती है स्टर्लिंग हॉलीडेज़। स्टर्लिंग हॉलीडेज़ इज़ नाउ पार्ट ऑफ थॉमस कुक इंडिया।
और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा हॉलीडेज़ की। स्पेसिफिक कारण सिर्फ एक, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी वैकेशन ओनरशिप कंपनी है, राइट। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट महिंद्रा हॉलीडेज़। महिंद्रा हॉलीडेज़ का ब्रांड है क्लब महिंद्रा, जिस नाम से मार्केट में वो अवेलेबल है, राइट। इसके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लगभग 2,65,980 हैं, जो इनकी इस साल की एनुअल रिपोर्ट से मैंने पिक किए हैं। इनके टोटल मेंबर्स हैं। इनके पास जो टोटल रूम्स हैं अपने रिजॉर्ट्स के अंदर, इनके पास 84 रिजॉर्ट्स हैं, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आते हैं इस 4,568 इन 84 रिजॉर्ट्स। चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूं अब मैं इसमें। ये हो गए टोटल मेंबर्स। अगर हम सिर्फ ये कहें कि सारे लोग हर साल मेंबरशिप की अवेल नहीं कर पाएंगे, मतलब वो लोग ट्रिप्स में नहीं जा पाएंगे किसी ना किसी कारण से, शायद कोई बीमार हो जाए, किसी के पास टाइम ना हो, तो उस केस में सिर्फ 90% लोग जा रहे हैं। तो अब कैलकुलेशन में क्या चेंज आ रहा है, एक चीज़ को समझिए आप ज़रा। 2,65,980 को जब हम करते हैं 90%, तो ये हमारे पास फिगर आती है 2,39,382। अब हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम से, जो है 4568। जब आप इसको डिवाइड करोगे, पता है क्या एक इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है, 52 से थोड़ा सा ज्यादा। व्हाट इज 52? 52 इज एक्चुअली नंबर ऑफ वीक्स इन ए ईयर। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, है ना। तो करंट ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये लोग फुल चलेंगे अगर हम नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स देखें विद इन इंडिया। सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ रूम्स देखें, इनके पास इज 4568। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर सिर्फ 90% लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑलमोस्ट फुल चल रहे हैं, राइट। और एक चीज़ आपको फैक्ट बताऊं, इनकी एनुअल रिपोर्ट में ये मेंशन था कि मार्च 2022 में इनकी ऑक्यूपेंसी थी 89%, है ना। हमने 90% पे तो कैलकुलेशंस करी हैं ऑलमोस्ट, विच इज अगेन सेम। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। चलो मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ महिंद्रा हॉलीडेज़ के बारे में। सो महिंद्रा हॉलीडेज़ ने जो अपना इनकम कमाई थी पिछले साल, टोटल इनकम में से, उसमें से 192 करोड़ वाज फ्रॉम रिजॉर्ट इनकम। 84 रिजॉर्ट्स ने मिलके कमाई। दिस इज रिजॉर्ट इनकम, राइट। अब इस रिजॉर्ट इनकम को हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस जो मेंबर्स ने आके स्टे किया वो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली पे किया। शायद लॉन्ड्री हो सकती है, इनफैक्ट आपने वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया, कुछ खाया या कुछ और आपने चीज़ें उनकी इस्तेमाल की, उसके हिसाब से उनको आपने उन लोगों ने आपको बिलिंग की है। तो वो टोटल हमने कैलकुलेट करी रिजॉर्ट की इनकम एज 192 करोड़। जो बाकी की 768 करोड़ है। अच्छा एक चीज़ और बता दो, 192 करोड़ में हम ये भी देखेंगे कि वो कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर कुछ स्पेसिफिक डेट्स में अवेलेबल हैं तो सारी वेबसाइट्स पे लिस्टेड हैं। मेक माई ट्रिप पे मिल जाएंगी, booking.com पे मिल जाएंगी, जितनी भी फेमस ट्रैवल वेबसाइट्स हैं। मैंने पर्सनली चेक किया था, उन सभी पे वो विजिबल है पर अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर अपनी डेट्स डालेंगे शायद वो आपको सोल्ड आउट दिखाए। और अगर कभी किसी वजह से वो डेट्स पे अवेलेबिलिटी आती है तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। विच मीन्स क्योंकि ये लोग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जिनको OTAs कहते हैं, अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी तो रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो भी बुकिंग्स वहाँ से आ रही है ना। तो वो भी हमने रिजॉर्ट इनकम में डाल दिया है। अब अगर हम इनकी 768 करोड़ की इनकम देखते हैं विच इज़ फ्रॉम वैकेशन ओनरशिप, तो इसकी अगर हम अब कैलकुलेशन करें पर मेंबर क्या रेवेन्यू इनको आ रहा है, तो 768 करोड़ आपका हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 265, 2,65,980। तो एवरेज अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू जो इनके पास आ रहा है इज 28,874 रुपये, विच इज एक्चुअली नॉट बैड।
इस 28,874 रुपये में आप दो चीज़ें मान सकते हैं। इसी रेवेन्यू में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी है, इसी रेवेन्यू में वो बड़ी पेमेंट्स हैं जो मेंबरशिप अवेल करने के लिए आप फर्स्ट टाइम पेमेंट्स कर रहे हो, है ना। सो उस टाइप की एवरेज चार्जेस इस सब में मैंने इंक्लूड कर दिया। तो कुछ लोग होंगे जिनके पास स्मॉलर मेंबरशिप्स होंगी या छोटे अमाउंट की मेंबरशिप्स होंगी, उनकी AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 24,000 ना होके 15,000 होगी, 10,000 होगी। बेसिस दैट जो एवरेज हमने निकाला है इस 28,874 रुपीज़। चलो अब मैं कुछ इनके और एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊँ, ये सारा पैसा एडवांस में आ रहा है। कितना अच्छा वो धंधा है कि आप सारा पैसा अगर एडवांस में ले पा रहे हो अपने एक साल के अंदर, तो आपको अपने रिजॉर्ट्स बनाने में, उनको बिल्डअप करने में ज़्यादा टाइम या पैसा कर्जा लेके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी इन लोगों के ऊपर कर्जा है, और वो कर्जा है लगभग 2500 करोड़ का। और ये कर्जा क्यों आया है इनके बुक्स के ऊपर, बड़ा ही एक स्पेसिफिक कारण है। अगर आप इनकी स्टैंड लोन फिगर देखें, सो अगर हम सिर्फ महिंद्रा रिजॉर्ट्स की बात करें तो उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। पर इन्होंने कुछ साल पहले एक फिनिश कंपनी खरीदी जिसका नाम है HCR, जो फिनलैंड के अंदर सेम बिजनेस को रन करती है, और उनके पास है 33 रिजॉर्ट्स वहाँ पे। जब इन्होंने उसको खरीदा तो उसके लिए इन्होंने इस कर्जे को लिया, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के नाम पे इन्होंने लिया था। सो ये कर्जा आपको उनकी बुक्स पे दिखता है, पर ये कर्जा कंपनी इजीली पे आउट कर सकती है, क्योंकि जब मैंने इनके कैश फ्लो को देखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो पिछले 5 सालों का जो टोटल कैश फ्लो है, मैंने लिख दिया टोटल 5 ईयर कैश फ्लो, वो आया है लगभग 2255 करोड़, विच ऑल्सो इंक्लूड्स पिछले 2 साल का टाइम जब चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी और जब मार्केट्स में धंधा ज़्यादा नहीं था, तब भी ये लोग अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे थे। और टोटल कैश फ्लो अगर 2255 है और सिर्फ 2500 करोड़ का कर्जा है, तो ईजिली पे आउट हो सकता है। सो ये मेरी एनालिसिस थी वैकेशन ओनरशिप एज ए बिजनेस के ऊपर, और मैंने एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की 3 तरीके से। पहला, एज ए कस्टमर मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा, एज ए बिजनेस मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा, और एज ए इन्वेस्टर मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा। आपके क्या थॉट्स हैं, डू शेयर इन योर कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।